पास एक फैन है, वो जो है Say, bro. अब वो चाह रही है कि सिर्फ तेरी आवाज आए उसे। Okay, Farooq Naseem, welcome to another mini-sode of Kal Ki Taza Khabar. And as we are moving ahead, we are now understanding what exactly we want to do with a podcast. Because that what we were doing was quite random, but actually it is now becoming more interesting. So, हम लोग अब से हमारा जो format रहने वाला है, basically we're going to do 3 kind of formats on our podcast. One is going to be a mini-sode. This is specifically targeted for those individuals who the minisodes are basically for. Okay, let me go the other way around. So the episodes, so we'll have an episode, we'll have about one episode every week with me and Farooq, which will be a longer podcast of about 35 to 40 minutes, where we'll talk about the Taza Khabars, plus we'll have our usual rants, and we'll talk about issues and blah blah. Basically, this is targeted, segmented for really serious podcast listeners, for the intellectual, for the creme de la creme of the podcast society. Yes. Then the second thing we're going to have is a guest episode, which will be again once a week, and we'll get one guest, and we will let that guest talk as much as they want to, because they cannot talk anywhere else. No one is listening to them anywhere else, so they come to our podcast because we're very kind people. We listen to everyone, and that podcast will be about for an hour. And for the masses, देश के सारी जनता के लिए, for the masses, for the peoples and the sheeples and the not so smarts and the not so, like, people like me, not like Farooq is the intellectual. Yeah, he's the guy with the book. He's got 60,000 followers and all. But people like me, who are like small people who just want to, come on, listen to something for 10-15 minutes, and then we suffer from this ADD. For them, we're going to do minisodes, which will be alternate days, and those will be about 10 to 15 minutes at the most. So we're going to start our minisode today and now. And Farooq, please let us know what the first Kal Ki Taza Khabar is, if you can. कल की ताजा खबर अमिताभ बच्चन के बारे में है। तुझे पता है अमिताभ बच्चन लैट्रिन गए थे 3-4 दिन पहले। But the funny thing is, मैं इंडियन न्यूज में देख रहा था, okay, 10 बजे प्राइम टाइम, and these are the exact words they used. अमिताभ बच्चन लैट्रिन गए. It's in a box. जया बच्चन से परमिशन लेके गए, वो नहीं लिखा हुआ था, मगर अमिताभ बच्चन लैट्रिन गए. These are the exact words they used in a box, and had Amitabh Bachchan's photograph, and that news anchor is so serious, like, और Amitabh Bachchan, point number 1, अमिताभ बच्चन जी लैट्रिन गए. Point number 2, सुबह में उठ के उन्होंने खाना खाया. Point number 3, खाना खा के फिर लैट्रिन गए. उनके हो क्या रहा है यार? इसलिए नेपाल में बैन हो गया इंडियन मीडिया. एकता कपूर इन्वॉल्व हो गई है न्यूज में, मुझे ये लगता है. एकता कपूर कहाँ से है? भाई ड्रामेटाइजेशन ऑफ एनीथिंग. अच्छा वैसा. तो खैर, ये तो रही अमिताभ बच्चन की लाइट न्यूज. दूसरा, आपके आंध्र प्रदेश में कुछ लिकर बॉटल्स मिली थी जिनको सॉलिड है भाई न्यूज ये. ये लोग ने 14,000 इलीगल बॉटल सीज किए, और फिर उसको उन लोग ने बहुत सारे मैन आवर्स लगाया कि पूरे बॉटल्स को ऐसे रोड पे अरेंज किए, फिर पैसे खर्चा करके एक बुलडोजर को हायर किया, और फिर वो बुलडोजर को बॉटल्स के ऊपर से चलाए. उसके बाद फिर 2 झाड़ू वालों को हायर किया, और पूरा फिर वो कचरा उठाए. वो कोई जिसने फोटो ली होगी, वो कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होगा, एस्थेटिक्स का ख्याल रख रहा होगा. भाई सही से लाइन अप करो. अच्छा, बॉटल फोड़ना ही था तो 1000 तरीके बॉटल फोड़ने के. खैर, तो हाँ बताइए. मैं ये बोल रहा था कि ये बुलडोजर क्यों लेके आते हैं, मतलब एक वो जस्ट एक इम्पैक्ट के लिए लेके आते हैं वो, क्योंकि बॉटल तोड़ना है, कोई भी तोड़ सकता है यार. एक दीवार लो, बच्चों को बुला लो गांव से, फेंको, तोड़ो. बच्चे भी एंजॉय करेंगे, थोड़ी एनर्जी भी जो है निकलेगी. खैर, तो probably they want to really crush the glass into fine pieces, so that I don't know, they can recycle it, but I don't know why. But वो जो 14,000 बॉटल जो जमा किए, just imagine man, जमा करके कुछ ने bowling कर लेते. So basically the government spend money to hire a few people, line up the bottles, and then they spend money
to get a steamroller and run it over them, and then they got somebody to clean all those pieces up. Exactly. भाई इससे oh I know what is happening. What's happening? ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है MGN महात्मा गांधी MGNR क्या है भाई वो ये ऐसे आते हैं लोग MG खबर नेगरा देने के लिए क्या MG है यार वो No, I mean that मैं यही शॉर्ट है वर्ड बोल रहा हूँ भाई द ब्यूटीफुल थिंग इज मैं आपको उसका लॉन्ग फॉर्म बोल दिया मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं बोल सक रहा हूँ उसका abbreviation नहीं बोल सक रहा हूँ तो बेसिकली दे आर गारंटीइंग एम्प्लॉयमेंट आई मीन हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है Oh really? हाँ फॉर 100 days और सर्टेन नंबर 100 days के लिए सो इट्स गारंटीड कि अगर आपको जॉब नहीं है तो वी विल गिव यू गारंटी रूरल एरियाज में तो आई थिंक उसके लिए उन्होंने ये काम किया कि भाई जॉब और तो है नहीं इकोनॉमी वैसे पूरा मार्केट बंद है तो एक काम करेंगे तो इसको एम्प्लॉय करेंगे बॉटल जमाने इसको एम्प्लॉय करेंगे स्टीम रोल करने और उनको एम्प्लॉय करेंगे साफ करने के लिए प्लस भाई बट एक और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है तो नाउ व्हेन दे हैव क्रश्ड द बॉटल्स व्हिच मींस द लिक्विड वाज ऑल आउट ऑन द रोड alcohol which means it's going to get evaporated and go back into the skies उसके यार अगर बारिश होगी नेक्स्ट टाइम मतलब नशे वाली बारिश होने वाली है यार I'll tell you a very weird thing जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है whenever I've seen pictures of bottles being crushed for some reason मैं कभी भी लिक्विड के बारे में सोचता ही नहीं हूँ मैं सिर्फ बॉटल्स के बारे में सोच रहा होता हूँ कि ये शीशा फोड़ रहे हैं I don't know why but somehow I see value in the bottles more than in the liquid which says a lot about me actually बॉटल रह जाता ना वो इट्स अ लॉट अबाउट यू एक पर्सनालिटी टेस्ट हो जाए यहाँ पे वही this Hey, by the sudden way, realization you I don't know whether you've been on covidloader.com of late or not, but India is now I in am second position in literally there right now the maximum number of cases being recorded per day. So we have now overtaken Brazil. To case that rates case rates में India is second and जी and cases में third है 1.15 million जिसको 11,50,000 11 लाख हाँ 11,50,000 हो गए या ऑलमोस्ट एंड आई डोंट नो मैन IMA ने कुछ अनाउंस किया है कि इट्स नाउ कम्युनिटी स्प्रेड इसके बारे में तुम्हारे पास भी और इंफॉर्मेशन है मुझसे ज्यादा आई बिलीव हाँ या तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन has now claimed that we are in the community transmission stage which means कि ये जो लॉकडाउन किए थे वो लोग that was precisely to stop this stage, the community transmission stage, right? Of course, जैसा पहले भी बताया मैंने कि ramp up your medical facilities and quickly track, trace and quarantine people so that it should not spread. Community transmission में होता ये है कि अब तक जो authorities थे इससे एक अच्छा किस्सा याद आया मैं बोलता हूँ जो authorities थे so अगर मेरे को अगर खुदा ना खास्ता कोविड होता है so they will come and question me and they'll find out who all I met so they will basically track basically will trace कि भाई where did I get it from so then they can go to that person and then they can quarantine him and the other people he met community transmission में ये होता है कि they are not able to trace it anymore that means जो virus है वो आपे से बाहर निकल चुका है it is now out there in the market no one knows who is getting it from where so it is very bad जो interesting किस्सा वो ये है कि मेरे जो head chef है मेरे रेस्टोरेंट में जिसका नाम है हसीब वो उड़ीसा में पिछले 4 महीने से तो उन्होंने कल मुझे कॉल किया और बोले कि भैया यहाँ पर तो हालत खराब है बोला क्यों बोले कि मेरे को थोड़ा जरा बुखार आया था मतलब नॉर्मल बात सर्दी होती है अब तो बारिश शुरू हो गई तो फार्मेसी के दवा लेने तो फार्मासिस्ट टोल्ड हिम कि भाई अगर आप कोई भी दवा लेते हैं पर्टेनिंग टू बुखार नजला खांसी सर्दी राइट हेडेक तो दे आर नोटिंग डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम एंड एड्रेस क्या बात कर रहा है and authorities are reaching your house and they're quarantining you इतने authorities हैं इंडिया में अथॉरिटीज तो है अभी भाई भूल गए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम समझ रहे आप तो बेचारे दवा नहीं खरीद सके यार बिकॉज लोगों की फटी पड़ी है सीरियसली बिकॉज people are thinking लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी है ना people are thinking कि लेके बंद कर दे रहे जाए कहीं पर भी which reminds me because he could not तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए गए थे ये बुजुर्ग और बिकॉज इनका ट्रीटमेंट तो हुआ इनका मगर बिकॉज बिल पे नहीं कर सके तो वहाँ के अथॉरिटीज ने उनको बेड से बांध दिया
और बोले जब तक क्या? खोलेंगे जब तक पैसे दोगे नहीं। तो उनके पास कोई पलंग तोड़ जवाब नहीं था। यही है पलंग तोड़ जवाब इनका। अच्छा, एक इंटरनेशनल न्यूज़, खैर ये तो रही हमारी बात हमारी कंट्री की तबीयत की। भाई जॉनी डेप तो तुम जानते ही हो, हाँ हाँ, कौन नहीं राइट? जानता भाई तो साहब जॉनी डेप का केस चल रहा है, वो एम्बर हर्ड, उसकी जो नाउ आई बिलीव एक्स वाइफ काफी सीरियस मामला चल रहा है उनके बीच में। तो द सन न्यूज़पेपर है यूके का, आपने हाँ सुना होगा। तो हाँ हाँ एनजीएन शॉर्ट फॉर्म है, is the network or whatever the parent company. इन लोग ने जॉनी डेप के बारे में कुछ न्यूज़ छापी थी and they called him a wife beater because ओह, of the whatever statements Amber Heard had given. तो खैर ये तो मैं इस न्यूज़ में नहीं घुसूंगा क्योंकि काफी सीरियस न्यूज़ भी है, बट ट्विटर पे एक अकाउंट है निक वॉलिस, NICKWALLIS, जर्नलिस्ट है and he has access to the court, right? तो वो कोर्ट्स के अंदर 10 दिन से वो कोर्ट्स के अंदर है and he is live tweeting whatever is happening during the case. यार I will tell you, मतलब मैं अनफॉर्चुनेटली आज उतना मैं नहीं इन्वॉल्व हो पाया, बट भाई बंदा जो है, जज ने क्या बोला, फिर एम्बर हर्ड ने क्या रिप्लाई किया, मतलब पूरा कोर्ट सीन जो उसका ट्विटर पे जो चल रहा है, हाईली रिकमेंडेड। बेचारे का आज आई थिंक इज द लास्ट डे बिकॉज ही हैज सम प्रायर क्या कहते हैं, Nick Wallace, you said his name is निक वॉलिस, ट्विटर पे जाओ। WALLIS. या इसका ये पूरा थ्रेड है जो मैं अभी तुझे वीडियो में दिखा रहा हूँ, एंड So भाई why don't you put it on I'll link Twitter, it, I'll link it as usual. तो भाई इतना एंटरटेनमेंट है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सीरियस न्यूज है, बट आपका कोर्ट केस मिल रहा है सामने यार। तो ये एक एंटरटेनमेंट वाली न्यूज हुई, और दूसरी एंटरटेनमेंट वाली न्यूज जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है, वो आप काफी दिलचस्प लग रहे हैं उसके बारे में। I think ये जो आप जो entertaining news की जो बात कर रहे हैं, I think I know what you're talking about. But मैं यहाँ टाइम देख रहा हूँ कि our Minnesota is supposed to be 10 minutes and I think we have already completed 10 minutes. So why don't we publish this and let the next episode be completely about that topic that you want to talk about. हाँ ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वो टॉपिक का नाम तो बता दे ताकि फिर लोग सब्सक्राइब करके फिर अगले एपिसोड में फिर वापस आए हमारे पास। Let it be a surprise. मैं ठीक है, बस अब हिंट मिल चुका है और oh god, done bhai. तो bhai, डन भाई। so let's see Perfect. how guys please let us know whether you would like us to continue with the minisodes. We were thinking कि भाई ये 40-40 मिनट के जो हम लोग episodes कर रहे थे, we'll continue that, but we'll do that on a more weekly basis. But हम लोग सोच रहे कि minisodes करते हैं so that we can give you a daily dose of some really radical news items that are happening around the globe. And irrespective of what you say, we're going to meet you tomorrow at the same time. इंशाल्लाह, डेफिनेटली भाई, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बेशरम हैं, हम आपसे आपके ओपिनियन तो मांगते हैं मगर हम करते वही है जो हमारे दिल में है। खैर जबरान, मैं ये बता दूं लोगों को कि कल की ताज़ा खबर इज नाउ ऑन ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ पॉडकास्ट्स। इट्स ऑन ट्विटर एट कल की ताज़ा खबर, इट्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो जहां पे भी आपको हमें रीच करना है आप रीच करें। मेरा नाम फर्रुख नसीम है, मैं हूँ द गाय विद द बुक, और ये मेरे साथ है आमिर जबरान at Amir Gibran on Twitter and on Instagram as well. Done bye. See you. Bye bye.